Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah. Good afternoon, sir. Happy New Year to all of you. This is the first lecture of mine in this year. Happy New Year, sir. So, Happy New Year to all of Yes, sir. you. Thank you. Happy New Year, sir. Thank you. Uh, I think I should start now. You must have gone through the videos, a video, particularly one video I had given uh, about Hardy-Weinberg equilibrium. Uh, of course, you will be thinking that why this sir has started with the Hardy-Weinberg equilibrium. But definitely, this is going to tell you that if you are willing to maintain the genetic purity of your open pollinated variety or synthetic variety or composites, you have to have the Hardy-Weinberg equilibrium. You have to maintain it for maintaining the genetic purity of the variety. As I said that this is applicable to Panamectic population or whatever you say that Mendelian population or open pollinated varieties where open pollination is going on. So there you have to fulfill the assumptions. Then only you can provide the quality seed to the farmers. Since it is a seed technology, you will be saying why sir is explaining the genetics, why sir is explaining the plant breeding, why not seed technology? So of course, this is most important, I tell you, to maintain the genetic purity of the variety. Seed is what of a variety. If you are giving mixture, that is not the variety, that is not quality seed. You have to provide the quality seed to the farmers. Once it becomes Panamectic population, it becomes very difficult to provide the quality seed because you have to fulfill all the assumptions of the Hardy-Weinberg equilibrium. Then only you can maintain the genetic purity of a particular variety. As I said, that Swan Composite 1 was a very popular variety, the composite variety of maize. It was very popular in Bihar and Jharkhand. So I hope you all must have gone through the video and you could understand, you would have understood the things what I wanted to explain, how you are going to apply it in your seed technology for maintaining the genetic purity of your variety, the seed which you are providing to the farmers, how it can be. So now I would like to have the questions, the doubts, whatever you are having in this video, so that we can discuss one by one. तो आप लोग अपने डाउट्स बता दो अगर कुछ है तो. थोड़ा डाउट्स तो रहता ही, ऐसा नहीं है, तो उसको हम लोग क्लियर कर लें. आयुष राज. हाँ, of course, here I would like to tell you there are 4 teachers in this course. You must be knowing that. Myself, and then Professor P.K. Singh, then Dr. B. Arun, then Dr. Jaya Sudha.
I hope you all will enjoy the semester uh, by having the discussion with the most experienced teachers. And you see, you must be familiar with others except Dr. B. Arun, who had been here with us for a long time, but he left. He had left us, and he had gone US for around 5 years. He had been there. Again, he has joined back, so he will be also there in this course throughout the semester. And of course, you know, Dr. Jayasudha is also in this course. So we hope you will enjoy whole semester in this course with the expertise of all the teachers. Ayush Raj, Yes, sir. have you gone through the video? नहीं. Sir, I go through means for half of the video means 20 or 10 or 20 minutes. क्यों टाइम नहीं मिला? Sir, सुबह से सर क्लास ही उधर हाँ, yes. Who has gone complete through complete video? How do you remember? La? हेलो हाँ बेटा बोलिए. सर, क्या म्यूटेशन को हमेशा डिटेक्ट कर सकते हैं इतने बड़े फील्ड क्रॉप में? एक मिनट. अंशुमन. यस सर. हाँ अंशुमन, डिटेक्ट तो करना ही होगा ना बेटा. यू सी, इफ एनीथिंग डिफरेंट, अब आप जैसे क्लास में 200 बैठते हो, तो जहाँ ऑफलाइन क्लास चलता है ना, तो कोई एक बच्चा भी थोड़ा सा इधर से उधर किया ना, दिख जाता है टीचर को. बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर. इसी तरह से प्योर वैरायटी जो है, होमोजीनियस है टोटल, उसको आप देख रहे हो तो दूर से ही दिख जाएगा अगर कोई भी abnormality दिखाई पड़ी. सो यू गो देयर एंड रिमूव इट. इसको रोगिंग कहते हैं. यू रोग इट आउट सो दैट कि उसके पॉलन ग्रेन आपके क्रॉप को पॉलिनेट न करें, उससे पहले हटा देना है. रोगिंग मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्ट ऑफ फ्लावरिंग, एंथेसिस आई मीन. तो ये पता चल जाता है बेटा, बट यू हैव टू वेरी कॉशियस टू मीट दैट एजम्पशन कि म्यूटेशन, तो म्यूटेशन यू कैन नॉट स्टॉप द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, है, टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी, है ना. यस सर. और सर, क्या रैंडम ड्रिफ्ट से कोई नया जीन ऐड हो सकता है कभी? रैंडम ड्रिफ्ट से नहीं, नया जीन नहीं वो होगा, वो तो फिर म्यूटेशन हो जाएगा. रैंडम ड्रिफ्ट से दूसरे पॉपुलेशन से जीन आ जाता है. दूसरे पॉपुलेशन से जीन आ सकता है. माइग्रेशन वो तो माइग्रेशन से जैसे हो रहा है, इसी तरह से आप जब वो करते हो, सैम्पलिंग एरर अगर हुआ, तो दरअसल हम तो एक जीन की बात दिखा रहे हैं. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड जीन्स आर देयर. सो कॉम्बिनेशन चेंज होके वो नया प्लांट टाइप दिखने लगेगा. जब आप जो है सैम्पलिंग एरर में कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये सब कॉम्बिनेशन आने लगा, सो यू विल बी हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट. बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग एरर यू आर गेटिंग एन रैंडम ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट. सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम once you are going to maintain the genetic purity of the varieties. तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में क्या यूज होता है, किस तरह की वैरायटीज यूज होती हैं, आप सभी को पता है? सर, ओपन
the varieties, composite, synthetics. वेरी नाइस, यही, यस। और हाइब्रिड, तो हाइब्रिड के लिए तो आपको हाइब्रिड हर बार आपको बनाना है, उसके लिए आपको ये वो प्रिंसिपल नहीं लागू होगा, वो नेचुरल पॉपुलेशन के लिए लागू होगा हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम। वो तो आर्टिफिशियल हो गया हाइब्रिड्स, है ना। हाइब्रिड्स तो आप बाय फोर्स बना रहे हो, लेकिन सर की इनब्रेड लाइन्स, इनब्रेड लाइन्स भी आप नेचुरल नहीं है, दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप एंड उससे भी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, क्योंकि नेचुरल पॉपुलेशन जो पैनमेटिक पॉपुलेशन है वो ओपन पॉलिनेशन है और हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजीनियस है, और आप चाहते हैं कि वो इसको सेल्फिंग इनब्रीडिंग करके आप होमोजाइगस लाइन तैयार करते हैं। एक ही ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से सैकड़ों होमोजाइगस लाइन तैयार हो जाती है, नियरली होमोजाइगस लाइन, विच यू कॉल इनब्रेड लाइन, and that inbred line we are using, and then we are crossing with other inbred line, and then we are seeing the combining ability. Once it is better and heterotic, then we develop new hybrids. So that is all artificial, that is not natural. Here we are talking about the panmetic, the natural population in cross pollinated crops, how you are going to maintain it. So whatever open pollinated varieties are there, they are natural. Whatever you are developing to exploit somewhat extent of the heterosis, you are developing what? Synthetics and composites. And the behavior of synthetics and composites are also just like open pollinated variety. So you have to maintain their genetic purity in the same manner by applying the Hardy-Weinberg equilibrium, Hardy-Weinberg law in your population. अदरवाइज वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो वैरायटी तुम्हारी सुवान नहीं रह जाएगी। कुछ ही साल बाद पता लगा एक और कोई और वैरायटी होगी। पूछिए प्रश्न पूछिए बेटा। अभिषेक, सर आपने बताया था कि सिलेक्शन हम लोग अवॉइड करते हैं, जिसमें कि हम लोग सिर्फ पार्टिकुलर अगर जीनोटाइप के मतलब प्लांट को ग्रो करवाएंगे और मान लो तो हम नहीं करवाएंगे, अरे तो you put the example of swan, yeah. Say for example you are, सिलेक्शन भी तो हाँ नेचुरल सिलेक्शन भी तो सर हो सकता है उसमें ना, तो हाँ वैसे भी तो सर डिस्टर्ब हो जाएगा रेशियो हार्डी-वेबर। हाँ, तो आपको बचाना है ना, द मैक्सिमम you have to avoid ना, whether natural selection or artificial selection you have to avoid. कैसे अवॉइड करिएगा बताइए नेचुरल सिलेक्शन को? सर आइसोलेशन डिस्टेंस या फिर टाइम आइसोलेशन? नहीं, नेचुरल सिलेक्शन तो आइसोलेशन से कोई मतलब नहीं नेचुरल सिलेक्शन का। आप बताओ है क्या? सर याद नहीं आ रहा है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया ना, तो उसमें आइसोलेशन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर को लगा कि ये पौधा जो है ज़्यादा अच्छा है, इसी को हम बचाएं, उसी का पॉपुलेशन बढ़ाएं, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सुवान वैरायटी बदल के कुछ और हो जाएगी। सो यू आर नॉट फेवरिंग दैट, वेदर नेचर इज फेवरिंग यू डोंट फेवर इट, इजंट इट? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए वो अच्छा पौधा भी जो नेचर ने अच्छा बनाया है उसको भी रोगिंग करना है। यू हैव टू रोग इट आउट। एम आई करेक्ट? यस सर है ना? तो रोगिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत प्रॉब्लम होता है, यस। और ज्यादा रोगिंग कर भी नहीं सकते। अगर ज्यादा हो गया तो वो मिक्सचर दैट मस्ट बी रिजेक्टेड। क्वालिटी कंट्रोल के स्टेप्स है ना, आप ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करते हो, इसीलिए तो कई क्लासेस है ना।
आप न्यूक्लियस सीड करते हो, फिर ब्रीडर सीड करते हो। न्यूक्लियस सीड तो मान लो ब्रीडर अपना अपना टोटल टाइम और एनर्जी और टैलेंट लगाता है, गुड क्वालिटी 100% प्योरिटी सब कुछ हो। लेकिन ब्रीडर सीड से जब शुरू करते हैं तो हमारे नेशनल सीड प्रोजेक्ट के जो कमेटी होती है वो विजिट करती है, वो पास करती है। अगर आपने रोगिंग अच्छा से कर लिया सब कुछ तभी पास होगा वो। और उसमें हम लोग स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर को भी जोड़ लेते हैं। जब हमारी मॉनिटरिंग टीम आने वाली होती है तो उनको भी खबर कर देते हैं कि मॉनिटरिंग टीम, नेशनल टीम आ रही है, आप भी आ जाओ भैया। बिकॉज दे हैव टू टेक द ब्रीडर सीड ना फॉर प्रोड्यूसिंग द फाउंडेशन सीड, द नेशनल ये तुम्हारा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है ना। तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, इट्स नॉट इजी। और इसीलिए स्पूरियस चीज़ें बहुत फ्रॉड होता है। हमारे किसान, अल्टीमेटली हमारे किसान ही मारे जाते हैं, तो है ना। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ खा जाती हैं, उसी तरह से हम सभी जो है अपने छोटों को दबा देते हैं। वही हमारे अन्नदाता हैं, उन्हीं का जो कहते हैं ना खून चूसना, उन्हीं का फिर हम खून चूसते हैं। वी आर नॉट ऑनेस्ट, वी हैव टू बी ऑनेस्ट। अगर आप चाहते हो कि समाज बढ़े, और सीड में तो बहुत धोखा होता है हमारे किसानों को। जो बोएंगे वही काटेंगे। किसान सोच के अच्छा मिला है, लेकर आया है, लगाया, पता कुछ और है, उसका समय पैसा सब कुछ बर्बाद हुआ। सो वी हैव टू हैव वेरी strong quality control, and in which this is a very tedious job. This rogging is a very tedious job, and during your crop period, at least twice, thrice, you have to see that it is done properly, and most of the rogging must be completed before start of your anthesis, so that unwanted pollen grains should not pollinate your crop, I mean your seed plants, है ना। बोलिए, मेरी बात जा रही है, सुनाई दे रही है सबको कि नहीं? कहीं से जवाब नहीं आ रहा है? समझ में आ रही कि नहीं? आवाज तो जा रही है, ठीक है। समझ में भी आना चाहिए ना। अल्टीमेटली वैरायटी फिर सीड के रूप में ही जाना है, और सीड नहीं दोगे किसानों को तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बरकछा के लोग नहीं जुटे हैं क्या इसमें? है ना, इंफॉर्मेशन था ना सबको, सभी नहीं आए हैं। 129 ही दिख रहे हैं, मोर देन 200 हैं लोग। हाँ बेटा बताइए। आप लोग नहीं पूछेगा तो हम प्रश्न रखेंगे फिर। खुशी है क्या इसमें ऑनलाइन? यस सर। खुशी, आप तो वीडियो पूरा देखी होंगी। हाँ बेटा। सर वीडियो देखे थे सर, पूरा नहीं देख पाए सर, आज सुबह से क्लास ही है हम लोग का। हाँ। सर देखे थे बट पूरा नहीं देखे। कोई ऐसा स्टूडेंट जो पूरा देखा है? यस सर। हाँ बेटा बताइए, आप ही बता दीजिए सबको, सबको बताइए क्या हुआ है उसमें, क्या हम कहना चाहें।
बोलिए। क्रॉस पॉलिनेटर सर वीडियो में बोलिए बेटा, कौन बोल रही हैं? बोलिए। सर मैं नाम 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 दिख नहीं रहा हमें, नाम बताओ। हेलो हाँ नाम बताओ बेटा, ये सर नाम बताओ बेटा। हैं? आवाज। सर काजल शर्मा। हाँ काजल, सर काजल शर्मा। हाँ काजल बेटा बोलिए। आवाज कट जा रही है क्या काजल की? सर वीडियो में सर आपने हार्डी एंड विनबर्ग प्रिंसिपल के सर प्रैक्टिकल यूजेस। हाँ आवाज हेलो तो, सर। आवाज, हाँ हाँ बीच बीच में आवाज आपकी कट जा रही है काजल, थोड़ा सा नेटवर्क में चली जाती। सर नेटवर्क में नहीं हो तुम। सर नेटवर्क है सर। हाँ हाँ, तो आवाज क्यों कट रहा है? हमारा नेटवर्क नहीं है क्या? मेरी आवाज कट रही है क्या आपको? नो सर। हाँ, आपकी आ रही है। इसका मतलब मेरा मेरा नेट सही है। हाँ बोलिए बेटा। यस सर मेरे में प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए, हो सकता है सर सही। वीडियो में आपने हार्डी एंड विनबर्ग प्रिंसिपल के प्रैक्टिकल यूजेस बताए हैं। हाँ आगे, यस सर। आगे बताइए बेटा, कुछ सर बताइए। आवाज आ रही है। हाँ हाँ पूरी आ रही है, आप आगे बोलते, चुप मत होइए, बोलते जाइए। सर उसमें प्रैक्टिकल यूजेस में सर ये सर उसमें आपने प्रैक्टिकल यूजेस बताए हैं और उसमें आपने बताया कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं उनमें हम वैरायटी को जेनेटिक क्लैरिटी ऑफ सीड्स एंड वैरायटी कैसे मेंटेन करते हैं, लाइक ओपीवी में, सिंथेटिक्स में, कंपोजिट्स में। और सर आपने उसमें 5 मतलब प्रिंसिपल बताए हैं जिन्हें हम इनहिबिट करके सर, प्रोहिबिट करके सर जेनेटिक क्लैरिटी मेंटेन कर सकते हैं। वो है म्यूटेशन, माइग्रेशन, रैंडम ड्रिफ्ट, सिलेक्शन एंड इनब्रीडिंग सर। या हाँ और सर फिर इस पर ही आपने पूरा एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट करके। यस, तो यही बताना था, प्रैक्टिकल यूज हमें यही बताना था बेटा कि आप कैसे कैसे वो करेंगे। तो अब मान लीजिए स्वान कंपोजिट 1 का आप ब्रीडर हैं, आपको 10 क्विंटल ब्रीडर सीड देना है पूरे देश के लिए, मक्का है। सभी लोग सुन रहे हैं ना? अंकुर, आयुष, अभिषेक, सभी लोग सुन रहे हैं? आदिति, सब लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। हमने कहा स्वान कंपोजिट 1 का आपको 10 क्विंटल ब्रीडर सीड देना है, ब्रीडर ही पैदा करेंगे ब्रीडर सीड। ओके, अब क्या करना होगा? आपके पास जो न्यूक्लियस सीड है उसी को लेकर लगाएंगे और एरिया देख लेंगे कि 10 क्विंटल के लिए कितना लगेगा, उतना सीड आप अरेंज करेंगे, इसके बाद लगाएंगे। अब हमारा कहना है कि आपके जो हार्डी मेंबर इक्विलिब्रियम के एजम्पशंस हैं उनको मीट करना है, तभी आपकी स्वान कंपोजिट ब्रीडर सीड और ब्रीडर सीड स्वान कंपोजिट का ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। है काजल, यही ना? काजल, यस सर। ओके यस सर यही है। ओके, अब आप सब एजम्पशंस को मीट करिए, तब हम मान लेंगे कि हाँ अब आप प्योर सीड पैदा कर दिए। अब पहला एजम्पशंस माइग्रेशन, इसके लिए आप क्या करेंगे कि हमारा स्वान कंपोजिट 1 का जो माइग्रेशन वाला एजम्पशंस है कि कहीं माइग्रेट ना करे, कोई माइग्रेशन ना हो हमारे फील्ड में। करेंगे और टाइम आइसोलेशन, हाँ बेटा, आइसोलेशन डिस्टेंस को सर मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये मक्का है, मक्का है तो 200 या 500 400 ऐसे है, देख लेना। आइसोलेशन डिस्टेंस हर क्रॉप के लिए अलग अलग बताया गया है। प्रॉब्ली इट इज फॉर ब्रीडर सीड इट इज 400 मीटर, देख लेना, आगे बताएंगे हम लोग। तो आप ये एश्योर करेंगे माइग्रेशन एजम्पशन को मीट करने के लिए कि माइग्रेशन नहीं हो रहा है। आप 400 मीटर अगर मक्का है या दूसरे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में देख लीजिएगा, सबका अलग अलग आइसोलेशन डिस्टेंस दिया रहता है। ब्रीडर सीड अगर आप कर रहे हैं 400 मीटर अगर आपको करना है
तो चारों तरफ 400 मीटर तक कोई मक्के की वैरायटी नहीं होनी चाहिए काजल। यस सर। तभी आप ये हार्डी वेम्बर के पहला एजम्पशन को मीट कर पाएंगे। मेरा कहना यही है। प्रैक्टिकल लोग यही चीजें नहीं बताता है, हार्डी वेम्बर इक्विलिब्रियम सभी लोग पढ़ा देते हैं। कैसे आप ब्रीडर, कैसे सीड टेक्नोलॉजी उसको यूज करेंगे वो नहीं कोई बताता है। विच इज द पार्ट जिसकी जरूरत है। क्यों? हार्डी वेम्बर इक्विलिब्रियम हो सकता है आपको जेनेटिक्स में बताया गया रहा हो, या आप पहले से जानते रहे हो काजल। सुने थे नाम? यस सर, थर्ड सेमेस्टर में था ना? वीके सर ने पढ़ाया था। हाँ, यस बताया था कैसे अप्लाई करोगे? यस सर, थर्ड सेमेस्टर। नहीं, बताए थे कैसे अप्लाई करोगे जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करने के लिए इसको किसी क्रॉप में, किसी क्रॉप में? नो सर। कोई नहीं बताता है बेटा, नो सर। कोई नहीं बताता है। अनफॉर्चुनेट। नो सर, एप्लीकेशन नहीं बताया गया था। तो क्या यूज है? हम तो कह रहे हैं कि पढ़ने का मतलब क्या है। मैं तो वही कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने डाला है, मैंने नहीं कभी देखा है। ये पार्ट मेरे उसमें नहीं है। जो भी कोर्स में एमएससी पीएचडी में पढ़ाता हूँ या बीएससी में पढ़ाता हूँ उसमें हमारा ये पार्ट नहीं है। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई बच्चा जो है बड़ा अच्छा से बोलता है डेफिनेशन, लेकिन जब पूछता हूँ कैसे यूज करोगे गायब हो जाता है। तो ये आज आपको इस क्लास में ये एकदम कॉन्फिडेंट हो जाना है कि कैसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हार्डी वेम्बर इक्विलिब्रियम आप अप्लाई करेंगे, सो दैट योर जेनेटिक प्योरिटी मस्ट बी अप टू द मार्क। तो हमने कहा कि माइग्रेशन, स्वान कंपोजिट 1 आपने लगाया है, तो लगाया क्या है? माइग्रेशन को चेक करना है पहले एजम्पशंस में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 400 मीटर चारों तरफ कोई दूसरी वैरायटी नहीं होनी चाहिए, ना कोई हाइब्रिड होना चाहिए। किसकी? मक्के की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट इन अदर क्रॉप्स आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। है काजल, आदिति? और I talk about practical, not theory. क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सोचिए। बोलिए काजल, आदिति, दोनों बोलिए तो। सर बोलिए। क्या बोलना है सर? बोलना ये है कि हमने कहा माइग्रेशन को चेक करने के लिए आपने मक्के का है सीड प्रोडक्शन, आपने 400 मीटर ब्रीडर शीट करना है। 400 मीटर आपने चारों तरफ आपको करना है। आइसोलेशन का मतलब समझ रही है ना कि आपके फील्ड के चारों तरफ 400 मीटर में कहीं कोई दूसरी वैरायटी नहीं लगी हो। यही ना मतलब हुआ। तब आप माइग्रेशन चेक करेंगे। बोलिए। अब जरा प्रैक्टिकली बताइए काजल, ये संभव है? आदिति? नो सर। अच्छा, नो सर। क्यों? हमें बीएचयू में करना है, संभव है? तो उसके लिए बहुत स्किल्स चाहिए होगा। ब्रीडर शीट करना है बीएचयू नो में। सर, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, बट इन अदर यूनिवर्सिटीज। हाँ बेटा, हेलो। टाइम आइसोलेशन करने में सर। हाँ, लेकिन जो बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एकड़ लैंड है, वहाँ आप पॉसिबल है कि कर लें, है कि नहीं? ब्रीडर शीट के लिए कर सकते हैं। नहीं, लेकिन बीएचयू जैसे फील्ड पे या किसानों के फील्ड पे आप किस किसान को कहेंगे कि यार तुम मत लगाओ हमारे बगल में? तो लगा देगा। तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि ठीक है, टाइम आइसोलेशन कर लीजिए।
आइसोलेशन जब बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो उसमें सारी बातें बताई जाएंगी कैसे आइसोलेशन करते हैं। तो टाइम आइसोलेशन भी है। अगर टाइमिंग चेंज कर दिए, किसानों ने अगर लगा दिया, तो वेट फॉर 30 डेज, सो दैट कि आपका फ्लावरिंग और उनका फ्लावरिंग सिंक्रोनाइज नहीं करे। मेन तो फ्लावर से ही मतलब है ना, वही तो पॉलिनेट करेगा। तो ये काम आप कर दीजिए, या फिर आपके पास सुविधाएं हैं तो नेट लगाइए, जैसे कर सकते हैं। यू हैव टू चेक द माइग्रेशन। तो पहला एजम्पशन आपको पूरा करना है, और कैसे करना आपके समझ में आ जाना चाहिए। आ गया होगा हमारी समझ से, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया। बोलिए आदिति, Yes. आया कॉन्फिडेंस आया? कैसे आप माइग्रेशन चेक करेंगी Yes, sir. टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी? काजल, काजल, अंशु शुक्ला, यस सर। आ गया ना? अब आपने देखा हार्डी मेंबर, Yes, sir. हाँ, हार्डी मेंबर इक्विलिब्रियम का अगला एजम्पशन म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। आप तो कर नहीं रहे म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज गोइंग ऑन approximately 10 to the power minus 6 on an average। ये तो चलता ही रहेगा। अब बताइए, ये एजम्पशन कि म्यूटेशन ना हो, आप तो म्यूटेशन रोक नहीं सकते हो। आप रोक सकते हैं, पर जो म्यूटेंट होगा उसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं। यस, दैट आई वांटेड। या हाँ बेटा बोलिए। We will spot the difference between the plants that we have grown and became rock out that mutant varieties, mutant Plant, yes. So at proper stage you have to rogue it out, isn't it? So it can be done. Hello, hello, Yes, sir. it is possible na? Okay, so you have got confidence on these 2 points of Hardy-Weinberg equilibrium, Hardy-Weinberg law. हाँ, hello, बोलिए। So mutation is taking place at a very small level, 10 is to minus 6. And Sure, it is sure. very hard to detect a mutant. Eh? It is very hard to detect a mutant क्योंकि बहुत सारे generations तक का वेट करना पड़ेगा म्यूटेशन डिटेक्ट करने के लिए। तो कैसे करें म्यूटेशन डिटेक्ट? जब दिखेगा तभी करेंगे बेटा। एक पौधा भी अगर 10,000 में दिखाई पड़ गया, 20,000 पौधे में एक भी पौधा दिखाई पड़ गया, यू हैव टू रिमूव इट। Means we wait like Yes, 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 you have to wait. No laboratory things. Okay, sir. Yeah. Phenotypic. On phenotype basis. You have to do it. इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे भाई। इतना ही नहीं कर पाते हैं लोग, इतना ही नहीं कर पाते हैं। और नहीं कर पाते क्या है, नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट करके हमारे किसानों को धोखा देना चाहते हैं। सर म्यूटेशन सर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में सर तो इजी है डिटेक्ट करना, बट क्रॉस वाले में तो सर सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी में तो सर समहाउ टीडियस प्रोसेस है। यस, वेरिएशन तो वैसे है। हाँ बेटा है, श्योर, आई एग्री। फिर भी करना है आपको, क्योंकि आप तो देख रहे हो बहुत स्मॉल हो रहा है, लेकिन उसको भी अलाउ नहीं करना है। क्योंकि एक बार स्मॉल एक ही प्लांट आ गया 10,000 में मान लीजिए, तो फिर पॉलिनेट करेगा, अगले बार फिर चेंज करेगा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। तो इस बार नहीं आया तो अगले बार दिखेगा ज़्यादा। तो जितने भी ऑफ टाइप्स आपको हटाइए, जब मतलब मैक्सिमम यू हैव टू डू योर बेस्ट, वॉट एवर यू कैन डू। छोड़ना नहीं है, छोड़ने से तब हमारे किसान धोखे में जाते हैं। ऑफ कोर्स टीडीएस तो है ही, क्वालिटी कंट्रोल तो करना है ना, यू हैव टू डू इट। एग्री करते हैं नहीं? यस सर। आगे बढ़िए। रैंडम ड्रिफ्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट,
ठीक है। जब आप सीड लेते हैं, जैसे आपने 10 क्विंटल पैदा किया, आपने मान लीजिए 1 क्विंटल पैदा किया न्यूक्लियस सीड, और ब्रीडर सीड और लोगों को पैदा करना है, आपने थोड़ा थोड़ा दिया। सैंपलिंग मस्ट बी प्रॉपर, सैंपलिंग एरर नहीं होना चाहिए। सैंपलिंग आगे आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे सैंपलिंग सीड की करते हैं। सैंपलिंग प्रॉपर हो, जिससे सारे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो, तब जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा कि कैपिटल ए की तरफ भग गया, कुछ पॉपुलेशन स्मॉल ए की तरफ भग गया। ऐसा नहीं हो। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए सभी प्रिजर्व हों, सैंपलिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो सैंपलिंग आगे आपको बताया जाएगा, सीड सैंपलिंग कैसे करते हैं। ये कर लेंगे आप रैंडम ड्रिफ्ट बचाने के लिए। अंकुर, अरे कोई बोल दो भाई, हम आगे बढ़ें। यस सर। बात समझ में आ रही है अंकुर? यस सर। Okay, then you have to avoid, as per the Hardy-Weinberg ये assumptions in breeding. This is also very very important. अब आप कहेंगे कि इसमें हम क्या करें सर? काजल? सर ग्रोइंग लार्ज पॉपुलेशन। यस, सिंपल बात। अगर आपको थोड़ा भी सीड के रूप में लार्ज पॉपुलेशन। हाँ बोलिए काजल, कट जा रहा आवाज तो भाई, बोलिए। सर लार्ज साइज पॉपुलेशन ग्रो करेंगे, जिससे रैंडम मैटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस सर लार्ज साइज पॉपुलेशन ग्रो करेंगे, जिससे रैंडम मैटिंग के चांसेस इंक्रीज होंगे। हाँ बेटा, करेक्ट, यू आर करेक्ट। तो इसमें करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पॉपुलेशन साइज 10,000 प्लांट से कम नहीं होना चाहिए। इतना कितना भी आपको सीड चाहिए, आप इससे ज़्यादा, इससे कम मत करिए। देन रैंडम मैटिंग होगी। अगर आपने 10 पौधा लगा लिया, 100 पौधा लगा लिया, इसके बाद जो है आप सोचेंगे कि आपका जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे, हार्डी वेम्बर इक्विलिब्रियम बना रहे, नॉट पॉसिबल। यही कहना चाह रहा है यहां। तो हो जाएगा, ये पॉसिबल है कि नहीं है? स्वान का हमें ब्रीडर सीट पैदा करना है, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर। गुड। देन एक और रह गया, सिलेक्शन। सिंपल बात है, ये गलती नहीं करनी है। या किसी ने कहा ना कि सर नेचुरल सिलेक्शन अगर होगा तो उसमें क्या करना है, तो उसका भी बात हमने बता दिया। और आपको भी सिलेक्शन नहीं करना है। इसका क्या मतलब हुआ? तो सर अच्छी क्वालिटी के प्लांट को नहीं चूज करना है। हाँ अंकुर, हाँ बताइए बेटा, फिर से बताइए। अच्छे क्वालिटी के प्लांट को चूज नहीं करना है, जो है वैसे ही हो। यस, कभी भी नहीं। सीड टेक्नोलॉजी में जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हार्डी वेम्बर इक्विलिब्रियम इन पैनमेटिक पॉपुलेशन में सिलेक्शन आपको नहीं करना है। अरे यार ये अच्छा पौधा दिख गया, इसको पकड़ लो। नो, डोंट डू दैट। वो फिर तब जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरफ ले जाएगा। पता लगा आपका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, पता लगा स्वान अब कुछ और हो गया। सो डोंट डू दैट।
अब एक्चुअल फंडामेंटल आपको समझ में आ गया कि कैसे आप यू आर गोइंग टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स. कुड यू गेट इट प्रॉपरली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि आपको फंडामेंटल्स क्या हैं, प्रिंसिपल टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स वैरायटीज. ठीक है, कॉन्फिडेंट है ना काजल? काजल, यस सर. एक प्रश्न दे रहा हूं आप सभी के लिए और अभी उत्तर चाहिए तुरंत हमें. यस सर. हमें सुवान कंपोजिट 1 का अगले साल के लिए 10 किलो ब्रीडर सीड चाहिए. कितनी एरिया में लगाइएगा? kg 10 kg सीड चाहिए हमको, ब्रीडर सीड अगले साल. ठीक है, तो न्यूक्लियस सीड से ही लगाएगा ना ब्रीडर सीड. न्यूक्लियस सीड ग्रो करेगा तो क्या होगा, फिर ब्रीडर सीड बनेगा ना वो. नहीं, बोलिए भाई, चुप क्यों हो जा रहा है? सीड रेट पे कैलकुलेट करेंगे सर. 20 kg पर हेक्टेयर पे लगता है सर एग्रोनॉम. राजशेखर, यस सर. राजशेखर, तुम अपना वीडियो ऑन करो. कहाँ से कर रहे हो क्लास? राजशेखर, क्लास कहाँ से कर रहे हो? घर से सर. वीडियो ऑन करो. नहीं करना है? नहीं करेंगे सर. नहीं करना है? नहीं, नहीं आ रहा है क्या? हैं? अब तो आया सर. नहीं, हाँ अभी आया राजशेखर. चलो बताओ आप. यस सर. सर सीड रेट पे कैलकुलेट करते हैं सर. नहीं नहीं 20 kg पर हेक्टेयर पे नहीं depend नहीं करता है सर. नहीं 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 राजशेखर, यही हमने ट्विस्ट किया. यही इसीलिए मैंने ट्विस्ट किया. तुम किसानों के बीच में भी काम कर रहे हो. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी. इट्स वेरी नाइस. यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट. तो कहीं भी वो कोई कंफ्यूजिंग चीज़ें ना जाएं. ठीक है, इसका ख्याल रखना. और यहाँ पे हमने क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया है ना? राज, अब तुम वीडियो ऑफ कर लो, नहीं तो प्रेशर में आओगे. तुम वीडियो ऑफ करो अब. या हमने ट्विस्ट किया है क्वेश्चन. क्या ट्विस्ट किया है? 10,000 सीड्स एटलीस्ट ग्रो करनी है. 10,000 सीड्स नहीं बेटा, 10,000 प्लांट्स. यस राइट. हाँ, मतलब हमने कहा कि राजशेखर देखो, यहीं पर ट्विस्टिंग हमारी यही थी कि वो तुम्हारा हार्डी वेम्बर्ग, देखता हूं कि हार्डी वेम्बर्ग, अभी आपने बात किया तो हार्डी वेम्बर्ग इक्विलिब्रियम तुम लोग पकड़ने जा रहे हो कि नहीं पकड़ने जा रहे हो? वही हमारा क्वेश्चन था. हमने तो 10 किलो बोल दिया. अब आप लोग कैलकुलेट करोगे कि एक पौधे में कितना होगा, और कैलकुलेट करके तो इट वाज थोड़ा सा अलग सा वो था, ये फंसाने का था. तो तुम पहले समझ गई थी काजल की, हमारे कहने पे समझ में आया है? काजल, हमारे कहने पे नहीं सर, नहीं समझा था. नहीं समझा, हमारे कहने पे समझ में आ गया. चलो, हमारे कहने पे समझ में आएगा तब भी बहुत बड़ी बात है कि आपने पकड़ लिया बात को.
मैं चाहता हूं कि आज आप खाली ये समझें कि हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम कैसे हम यूज करेंगे एज ए सीड टेक्नोलॉजिस्ट, और अगर हम यूज करेंगे तो फंडामेंटल हम जान गए सीड प्रोडक्शन का क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, है ना, और आप जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन कर लेंगे। तो जैसे ही राज हमें 10 किलो चाहिए और आपने अगर कैलकुलेट कर दिया तो आपका हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम फेल हो जाएगा। सो यू हैव टू बी कॉशियस टू मेंटेन द हार्डी-वेबर लॉ इन योर पॉपुलेशन। आज का मेरा मैसेज यही था। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? सबको ठीक लगा? कॉन्फिडेंस आया सबको? अब कोई नहीं बोलेगा। राजशेखर, हाँ तुम ही नहीं बोला खाली। अब काजल को कॉन्फिडेंस नहीं आया, आदिति को नहीं आया, अमरजीत को नहीं आया, अंशु को नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा? क्यों फेल हो गया हम लोग? हाँ हेलो सर आपने बोला कि हार्डी-वेबर लॉ फेल कैसे? आदिति बोल रही है? यस सर। हाँ क्या हुआ बेटा? और आपने भी जो कैलकुलेट करने के लिए दिया, हमें उसमें बोला कि अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हार्डी-वेबर लॉ फेल हो जाएगा, सर वो समझ लीजिए। नहीं, कैलकुलेट करने का मतलब मेरा ये कहना था कि हमने क्वेश्चन ट्विस्ट किया था कि आप थोड़ा दिमाग दूसरे तरफ आपका चला जाए और फेल कर जाए हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम। तो राजशेखर वहाँ फेल किया, और काजल को भी अगर हम ये नहीं बताते कि हमने ट्विस्ट किया है तो हो सकता है काजल तुम भी नहीं समझ पाती कि हमने ट्विस्ट किया है ना? यस सर। या तो आदित्य, मैंने आंसर दिया था और मुझे समझ आ गया था। वे ग्रेट पहले ही बिना हमारे बोले। यस सर। दैट्स ग्रेट दैट आई, अब मेरा मैसेज गया कंप्लीट तुमको। वही मैं चाहता हूँ सभी को मेरा मैसेज जाए। तो आदित्य मेरा यही कहना था कि मैंने 10 किलो कह दिया तो दिमाग आपका हमने हटा दिया उधर। अब आप कैलकुलेट करोगे कि मान लो 100 ग्राम हो गया एक पौधे में, तो इतने पौधे हम लगा देंगे, ठीक है, उससे 2 4 10 पौधे और लगा देंगे तो हमको 11 किलो मिल जाएगा या 15 किलो मिल जाएगा। ऐसे करके करोगे तो जैसे ही ये किया तुमने, लार्ज साइज का जो किसके लिए था, क्या लार्ज साइज इन ब्रीडिंग, आप जब फोर्स कर रहे हैं इन ब्रीडिंग के लिए, जबकि रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, तभी आप हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाएंगे। तो जैसे पॉपुलेशन साइज आपने घटा दिया, आपकी इन ब्रीडिंग आपने फोर्स कर दिया इन ब्रीडिंग के लिए, और जितने कम पौधे हैं वही आपस में मिलेंगे, अब बाकी तो हट गए। तो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, फिर आपका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी अगले पॉपुलेशन में। तो आप देखोगे सुवान नहीं रहा। आदिति, इज इट क्लियर और समथिंग मोर यू वांट? आदिति जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आ गया ना? और किसी को कहीं कोई डाउट प्लीज आप क्लेरिफाई करें।